Okay. 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 Uh, Coral PDMarks is an RDSO approved product. It's an RDSO Part 1 product. Coral PDMarks is PDMarks 128 can go up to 128 channels. It can take 2E1 in, 2E1 out. So it can be work as a 128 channel PDMarks. It's a cost effective solution. So we will not go with overview. It's a connectivities. It can take evens. It can take 2E1 in, 2E1 out. Primarily, as per RDSO, we are giving 30 channel PDMarks, 1E1 in, 1E1 out. It can give FXS, FXO, E&M as output. N cross 64 is also there in the PDMarks. We have CLC card also, which give 64 kbps co-directional data. IDSL connectivity is also there in the PDMarks, which can provide ISDN interface for video conferencing solutions. हेलो, क्या आप स्लाइड अभी मूव कर रहे हैं कि पहला ही पेज है अभी? It's a first network diagram, first connectivity diagram is the first page. First page is the first page. नहीं, अभी आप एक सेकंड पेज अभी स्लाइड करिए. It's an overview, nothing else. नहीं, अभी केवल आपका पहला ही पेज शो हो रहा है. पहला ही पेज शो हो रहा है, मींस दिस CMUX 128. हाँ हाँ, या ओहो, व्हाई सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है आपके पास? नहीं नहीं. हाँ, अभी आया. अभी सेकंड आया. अभी सेकंड आया, थर्ड आ रहा है अभी. हाँ, अब ओके. हाँ हाँ. नो बट अच्छा, स्लाइड शो के अंदर नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है. ओके, तो in this CMUX connectivity diagram, it shows FXS connectivities, FXO, E&M, N cross 64, 64 kbps co-directional data. Coral Mux also having IDSL connectivities for video conferencing. It can provide ISDN connectivities for video conferencing. This is a PDMux chassis. This is 6U 19-inch rack mountable chassis. It can take 16 peripheral cards. 16 peripheral cards can be used when we use this mux as a 128 channel mux. But in 30 channel mux, 50% capacity can be used of this cabinet. It can have redundant power supply and redundant CPU. It works on minus 48 volt DC. The cabinet is having alarm, major, minor alarms on the top. Major, minor alarm indication on the top. Alarm can be resetted from the buttons provided on the chassis. One more connector is there. You can interface these alarms with the external devices. Say you can have external buzzer, external light. CMUX 128 can take FXS, FXO, E&M, E1, CLC, V.35, N cross 64, MIC. MIC is management interface card, which will provide alarms interface, visual and audio visual alarms. One more card is there, loop protection card. Loop protection card, I will explain on later slides. Card description. CPU card can provide 1+1 redundancy. It can take 16 peripheral cards. Onboard storage is there. CPU card is having RJ45 for Ethernet connectivity, and
RS232 for serial port connectivities. Subscriber card for hotline, 8 port FX access card. Beauty of this card is this. Hello. Beauty of this card is this. This card can go up to 20 kilometers length. Loop resistance of my FXS card is 3300 ohm. So you can provide hotline up to 20 kilometers. FXO card is also 8-port card. It supports polarity reversal and detection. Even card is 30 channel even card, 30 time slots available for use and 2 time slots for signaling. As per ITU G703, G704, G732 standards, bitrate is 2.048 megahertz. Line code is AMI. And output is RJ45 as standard, as per RDSO. Is even panel having indication for LOS, RED, RAI, AIS, and SLIP. वेट सर Yes. थोड़ा सा स्लो मूव करें, ऐसा रिक्वेस्ट है. Okay. No problem. Even कार्ड, अगर आप even कार्ड को देखेंगे, I have picture of this even card. Even card is having 8 LED indication on the front panel. Those LED indication shows alarms for LOS, RED, AIS, RAI, and SLIP. This even card, specification of this even card is the bitrate is 2.048 megahertz, line code AMI, and connector, front end connector is RJ45. Even card is having 3 RJ45 connectors on front side. One is for line connectivity, other one is for line protection even, and third one is for external clock interface. So we have three interface connectors, 1, 2, and 3 for Wait, sir. line. सॉरी टू इंटरप्ट यू. मेजर डिमांड हिंदी की है, तो अगर आप हिंदी में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. थोड़ा सा मिक्स एंड मैच, मतलब हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके. Okay. Even card is having 3 connectors, 3 Ethernet connectors on front side. में एक कनेक्टर होता है इवन कनेक्टिविटी के लिए, दूसरा कनेक्टर पावर फेल थ्रो के लिए होता है, पावर फेल इवन अप के लिए होता है. तीसरा कनेक्टर जो होता है वो एक्सटर्नल क्लॉक प्रोविजन के लिए होता है, जिससे कि हम एक्सटर्नल क्लॉक फीड कर सकते हैं. अगर नेटवर्क की क्लॉक डिस्टर्ब है तो हम एक्सटर्नल क्लॉक फीड करके मक्स के नेटवर्क को चला सकते हैं. इवन का जो स्पेसिफिकेशन है वो आरडीएसओ के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है, एज पर ITU T स्टैंडर्ड्स. इसके बाद E&M कार्ड है. E&M कार्ड 8 पोर्ट का E&M होता है कोरल के PDMux में. 8 पोर्ट का E&M 2 वायर और 4 वायर सेम कार्ड के ऊपर होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगरेबल होते हैं. आप NMS से या कमांड लाइन इंटरफेस से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इसका कनेक्टर जो E&M का होता है वो D टाइप कनेक्टर होता है. इसमें 2 कनेक्टर्स होते हैं E&M कार्ड के ऊपर. 4 पोर्ट के लिए 2 कनेक्टर्स होते हैं. इसके बाद कोडायरेक्शनल
डेटा कार्ड होता है 64 kbps को डायरेक्शनल डेटा कार्ड, 8 पोर्ट का कार्ड होता है। इससे 8 चैनल्स निकलते हैं। 8 चैनल से आप 64 kbps का डेटा ले सकते हैं, 8 पोर्ट। ISDN इंटरफेस के लिए IDSL कार्ड होता है, 2 पोर्ट का IDSL कार्ड कोरल का मक सपोर्ट करता है। इसमें से 2 पोर्ट निकलेंगे जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज हो सकते हैं। 128 kbps की स्पीड देता है हर पोर्ट के ऊपर। IDSL मॉडेम, ISDN कार्ड IDSL मॉडेम के साथ चलता है, पेयर में होता है। IDSL मॉडेम लगा के फिर ISDN इक्विपमेंट के ऊपर NTTA से लगेगा। जनरली आज की तारीख में यूज नहीं होता, बट स्पेसिफिकेशन का पार्ट है, दैट्स व्हाई ये कार्ड अवेलेबल है। इसके बाद N×64 कार्ड होता है। N×64 कार्ड की वेराइटीज होती हैं, V.35, V.24। ये दोनों N×64 के पार्ट्स होते हैं। V.35 एसिंक्रोनस डेटा के लिए यूज करती है रेलवेज, एंड V.24 स्काडा के लिए यूज करती है। दोनों सेम टाइप का हार्डवेयर और सेम टाइप के कनेक्टर्स होते हैं दोनों कार्ड्स के ऊपर। और 2 पोर्ट के कार्ड होते हैं, V.35 एंड V.24 2 पोर्ट के कार्ड होते हैं। V.35 और V.24 में बेसिक डिफरेंस होता है। V.24 1200 bps की स्पीड पर चलता है, V.35 19200 की स्पीड पर जनरली चलता है। V.24 का मैक्सिमम थ्रूपुट 19200 होता है और V.35 का 64 kbps होता है मैक्सिमम। पावर सप्लाई कार्ड एच पर RDSO स्पेसिफिकेशंस, जैसे मॉड्यूल बेस्ड पावर सप्लाई कार्ड होता है मक्स के अंदर। इस पावर सप्लाई कार्ड के अंदर 48 वोल्ट, 5 वोल्ट और 70 वोल्ट्स के मॉड्यूल्स होते हैं जो कि सिस्टम के ऑपरेशंस में काम आते हैं। पावर सप्लाई कार्ड सिस्टम का 36 वोल्ट से 72 वोल्ट तक का पावर सप्लाई इनपुट ले सकता है। मींस आपकी बैटरी 36 वोल्ट तक ड्रेन हो गई तो भी आपका मक्स चलेगा, और ये पावर सप्लाई 1+1 रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है। उसके बाद मीडिया इंटरफेस कार्ड होता है, ये मैनेजमेंट इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ये मैनेजमेंट इंटरफेस कार्ड सारे अलार्म्स, जो विजुअल अलार्म्स हैं, वो अलार्म्स प्रोवाइड करता है मक्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन पोर्ट्स भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कि हमने अलार्म को बजर कहीं पर लगा दिया, हुटर लगा दिया, हुटर को ऑन ऑफ करना, और वो सारे एक्शन पोर्ट्स इसके अंदर होते हैं। अगर हम मक्स के अलावा जो है मक्स किसी रूम में लगाया और बाहर कहीं पर भी हम अलार्म लगाना चाहें, अलार्म का इंटरफेस, तो हम इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। मक्स का फाइनल कैपेसिटी जो है 60 चैनल मक्स तक हम इसको चला सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला। इस मक्स को IP बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें IP कार्ड्स लगा के IP बेस्ड प्लेटफॉर्म पे अपग्रेड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मक्स है कोरल का। लूप प्रोटेक्शन कार्ड, लूप प्रोटेक्शन, चैनल बेस्ड लूप प्रोटेक्शन मक्स के अंदर इनबिल्ट होता है, और मीडिया प्रोटेक्शन, लूप प्रोटेक्शन कार्ड LPC कार्ड के थ्रू मीडिया प्रोटेक्शन भी आप इसमें चला सकते हैं। चैनल बेस्ड लूप प्रोटेक्शन वो होता है जैसे आप कंट्रोल सर्किट्स को लूप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चैनल बेस्ड रिवर्स पाथ के अंदर चैनल बेस्ड लूप प्रोटेक्शन उसके अंदर हो जाता है। जैसे आपने एक कॉन्फ्रेंस सर्किट को प्रोटेक्ट कर लिया या किसी एक कंट्रोल सर्किट को प्रोटेक्ट कर लिया, तो वो चैनल रिवर्स पाथ में चैनल से प्रोटेक्ट हो जाता है मक्स के अंदर ऑटोमेटिक। और अगर आपको मीडिया प्रोटेक्ट करनी है उसके लिए LPC कार्ड लगता है मक्स में। इसके बाद जो है कोरल मक्स किसी भी मक्स के साथ कॉम्पेटेबल होता है, प्रोवाइडेड NMS कोरल मक्स का चलता है। SNMP, हर मक्स का अपना SNMP MIVs हर सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो किसी दूसरे के NMS के साथ नहीं चलता। बाकी किसी भी लाइन के ऊपर कोरल का मक्स आप चलाएंगे, वो उस लाइन पर कोरल का मक्स चलेगा, चाहे वो बैफिल का लगा हो, चाहे पनकॉम का लगा हो, चाहे नोकिया का लगा हो। किसी भी मक्स के साथ में आप इवन पे इंटरफेस कीजिए, मक्स अपनी फंक्शनलिटी करेगा, प्रोवाइडेड NMS जो है उसके NMS के ऊपर नहीं दिखेगा।
कोरल का मक्स हॉट स्टैंड बाय सीपीयू सपोर्ट करता है, बट आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं होता हॉट स्टैंड बाय सीपीयू, इसलिए हॉट स्टैंड बाय सीपीयू हम उसमें प्रोवाइड नहीं करते। स्टैंडर्ड फीचर्स में कॉन्फ्रेंस और कंट्रोल सर्किट्स जो एज पर आरडीएसओ सारे मक्सेस में होता है वो कोरल के मक्स में होता है। कोरल के मक्स में 21 कॉन्फ्रेंस सर्किट्स होते हैं जो किसी भी मक्स में आपको नहीं मिलेंगे। आप 21 कॉन्फ्रेंसेस बना सकते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंस सर्किट आप क्रिएट कर सकते हैं। हॉटलाइन सर्किट होते हैं, ब्लॉक सर्किट। कोरल का मक्स इंटरफेस किसी भी पीवीएक्स के साथ हो सकता है। एनएमएस, कोरल का एनएमएस है मक्स के साथ में, और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन कोरल का मक्स कर सकता है, जो स्टैंडर्ड फीचर्स में आता है। कनेक्टिविटी अदर मक्स के साथ में अगर आपको करनी है तो ये कोरल का मक्स, देखिए इस सारे स्टेशन के ऊपर अलग मक्स लगे हैं और ये कोरल के मक्स लगा दिए हमने 3। बस ये कोरल के मक्स से एनएमएस चलाना है आपको, तो एक मॉडेम इंटरफेस के साथ में आप लेके आइए, कोरल का एनएमएस आप स्टेशन पे लगा लीजिए। अदर मक्स के एनएमएस के ऊपर कोरल का मक्स नहीं देखेगा। कोरल के मक्स का एनएमएस मॉडेम से लाना इसलिए इजी होता है क्योंकि कोरल ईथरनेट पे ऑपरेट करता है, बाकी के सब सीरियल इंटरफेस पे ऑपरेट करते हैं, जो कि अब सल्यूट हो गया सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस आज की तारीख में पीसीज में या किसी में नहीं मिलता, आपको उसके लिए अलग से हार्डवेयर प्रोक्योर करना पड़ता है, उससे चलाना होता है। कोरल का मक्स ईथरनेट पे ऑपरेट करता है, तो किसी भी स्टैंडर्ड मॉडेम से आप उसको उसका एनएमएस लेके आ सकते हैं कहीं भी। अब हम एलपीसी कार्ड की बात करें, जो मैंने इनिशियल बोला था। एलपीसी कार्ड में, हेलो, एलपीसी कार्ड में 6 इवन इंटरफेस होते हैं, 3 इन और 3 आउट। आप इसमें प्रोटेक्शन इवन, मेन इवन और सेकेंडरी मक्स के लिए इवन से हर मक्स से 2-2 इवन निकल के एलपीसी कार्ड पर आते हैं, और एक प्रोटेक्शन इवन आता है जो कि फार एंड के मक्स से चलता है। तो जब भी मेन लिंक फेल होती है, जैसे मेन लिंक है मक्स की, मेन लिंक फेल होती है, वो प्रोटेक्शन लिंक से कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जहां से भी मेन लिंक फेल होगी, से मेन लिंक आपकी दिल्ली अंबाला के बीच में फेल हुई, तो एलपीसी का जो लिंक है वो दिल्ली अंबाला पे कनेक्ट हो जाएगा। एलपीसी लेफ्ट हैंड का दिल्ली का एलपीसी का लिंक अंबाला के लिंक 1 से कनेक्ट हो जाएगा, और अंबाला का एलपीसी का लिंक दिल्ली के लिंक 2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो वो कनेक्टिविटी एज इट इज थ्रू हो जाएगी विदाउट फेल्यूर। हेलो सर, हाँ जी। ये स्विच करने में कितना टाइम लगेगा इसको, जैसे कि कहीं भी पाथ कटता है? मिली सेकेंड्स में होता है सर, ये मिली सेकेंड्स में होता है। अच्छा, मतलब सर्किट इंटरप्ट नहीं हुआ? सर्किट जो है इंटरप्ट नहीं होगा, यानी कॉन्फ्रेंस जो चल रही होगी ना आपकी, वो कॉन्फ्रेंस में हल्का सा एक कच्चा आएगा और कनेक्ट हो जाएगा वो। ओके, अच्छा, इसमें केवल कॉन्फ्रेंस सर्किट ही अपने प्रोटेक्शन पे आएंगे हाँ, कि लीनियर सर्किट भी आएंगे? जब हम एलपीसी की बात करते हैं तो ये मीडिया प्रोटेक्शन होता है एलपीसी, तो इसमें सारे सर्किट प्रोटेक्ट हो जाते हैं आपके। ओके। एलपीसी में सारे सर्किट प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और एलपीसी आपको दूसरा एक और मल्टीपल फेल्यूअर्स को भी प्रोटेक्ट करके देता है। जैसे मान लीजिए एक फेल्यूअर नोएडा दिल्ली के बीच, मैंने जो डायग्राम बनाया, एक फेल्यूअर नोएडा दिल्ली के बीच में हो गया और एक फेल्यूअर आपका चंडीगढ़ सोलन के बीच में हो गया, तो इन दोनों फेल्यूअर्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आप ऊपर देखेंगे एक पिंक कलर की एक लाइन आई है, ये लाइन डायरेक्ट जो है सोलन से नोएडा पे कनेक्ट हो गई, तो यहाँ से एलपीसी आपको ब्रेकेज को मैनेज करके देगा दोनों तरफ पे। तो मल्टीपल फेल्यूअर्स के अंदर भी पूरे मीडिया को प्रोटेक्ट करके देता है एलपीसी। हाँ जी सर। इसमें डाटा सर्किट अगर चल रहा है सर, डाटा सर्किट आपका अगर चल रहा है तो एक जो है 30 मिली सेकंड के आसपास का एक ब्रेक होता है और कनेक्ट हो जाता है, इमीडिएट कनेक्ट होता है। वो कनेक्शन में कनेक्शन फेल्योरिटी नहीं होती, कनेक्शन वो सर, लेकिन हाँ, एक्सेल काउंटर पे इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंस्टेंट इम्पैक्ट, लेकिन रिस्टोर हो जाता है इमीडिएटली। वो तो एक बार फेल हो गया ना।
फेल तो नहीं, हो ही जाता है एक्सेल सर, काउंटर रिस्टोर हो जाता है, लेकिन एक मीडिया जब फेल्योर होगा सर, मीडिया जब फेल्योर होगा, तो मीडिया फेल्योर के केस में तो एक्सेल काउंटर टोटली फेल्योर हो जाना है। ये तो इमीडिएट चेंज ओवर करके दे रहा है उसको। एक फेल्योर तो आएगा, एक फेल्योर तो आएगा। एक फेल्योर को देखिए, उस फेल्योर को अगर हमने रिस्टोर कर दिया, मैं कह रहा हूं उसको 30 मिली सेकेंड को और नीचे लेके चले जाते हैं हम, तो वो एक फेल्योर को हम कोशिश करके रिस्टोर भी कर, कहीं ना कहीं फेल्योर तो आएगा उसमें। एक ब्रेक तो होगा सर, एक ही ब्रेक होगा। हेलो, आप एलपीसी को कैसे भी डिफाइन कर लें, एक फेल्योर तो होगा होगा उसके अंदर, क्योंकि चेंज ओवर होना है लेग को। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम में दो तरीके से होता है। एक तो आप सीरियल इंटरफेस से कर सकते हैं, और दूसरा ईथरनेट इंटरफेस से कर सकते हैं। सीरियल इंटरफेस में बॉर्ड रेट वो 19200 की बॉर्ड रेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको। दूसरा ईथरनेट इंटरफेस में पोर्ट नंबर 23 के ऊपर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। टेलनेट पोर्ट होता है 23। वेद प्रकाश जी, एक बार लूप प्रोटेक्शन कार्ड पे जाएंगे। जी सर। अच्छा सर, आपका एक ये जो कार्ड है, ये कार्ड जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये मतलब कि जिस तरीके से एमआईसी कार्ड, इवन कार्ड, सीपीयू कार्ड होता है, वो उन कार्ड्स की तरह कंपलसरी कार्ड शायद आप लोगों ने उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। कंपलसरी एक्चुअली आरडीएसओ ने डिफाइन नहीं किया है सर, क्योंकि कुछ जो है वेंडर्स आरडीएसओ अप्रूव्ड जो है वो एलपीसी कार्ड नहीं है उनके पास। दैट्स व्हाई आरडीएसओ ने कंपलसरी डिफाइन नहीं किया। आरडीएसओ ने कहा है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नहीं जिसको सर, रिक्वायर्ड है वो ले सकता है। अभी सर देखिए, जैसे कि ये चीज जब आपका बड़ोड़ा डिवीजन के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था, उस टाइम पर मैंने मितेश भाई से भी बात किया था कि एलपीसी कार्ड सर देखिए, जिस तरीके से वेफिल इक्विपमेंट है, वेफिल इक्विपमेंट के अंदर जो ये प्रोटेक्शन वाला जो सर्किट है, वो प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाता है, उसके अंदर ऐसा इनबिल्ट सर्किट है। तो सर आपको ये जो लूप प्रोटेक्शन कार्ड है ना, वो एज अ मतलब कि रिक्वायर्ड कार्ड उसमें होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इक्विपमेंट है वो इंस्टेंट मतलब कि अपने आप स्विच ओवर नहीं करता है। जिस टाइम पे अगर एलपीसी कार्ड नहीं होता है, तो हमको मैन्युअली पैच पैच करने पड़ते हैं सारे सर्किट। तो वो कहीं ना कहीं एक ग्लिच है आपके सिस्टम में। इसलिए मैंने मितेश भाई को और मेरे दूसरे एसएससी की मितेश भाई को सजेशन दिया था कि एलपीसी कार्ड को एज ए कंपलसरी कार्ड आप प्रिक्योर करवाइए। जिस टाइम पर आप किसी को भी मग सप्लाई कर रहे हैं ना, उस टाइम पर आपको एक एलपीसी कार्ड एज अ रिक्वायर्ड कार्ड आपको एक देना ही चाहिए। वो भले ही आप उसका कॉस्टिंग उसके अंदर आप ऐड कर लीजिए, बट लूप प्रोटेक्शन कार्ड के बिना आप, एलपीसी कार्ड के बिना आप कोई भी मग सप्लाई मत करिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्विच ओवर नहीं हो पाता एलपीसी कार्ड की एब्सेंस में। तो जो फेलियर के टाइम पे मैनुअल पैचिंग करना पड़ता है, उसमें कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है। वेद प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, मुझे तो आवाज आ रही है, बट वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। जी जी। हेलो। आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हेलो।
हेलो हाँ 41 ओके, हमारी स्ट्रेंथ 41 के आसपास हो गई है, दैट्स वाई वो ब्रेक हो रहा है वहां से सर्वर से। वेद प्रकाश जी कंटिन्यू करिए आगे। ओके सर। हाँ, एलपीसी में आप कुछ पूछ रहे थे सर। मैं आपको ऐसा कह रहा था कि अभी जो हम एग्जिस्टिंग वेबफिल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो उसमें एलपीसी नहीं होता सर। एलपीसी नहीं होता, बट उसके अंदर इनबिल्ट इस तरीके की फैसिलिटी रहती है कि जब भी कहीं केबल आपका ब्रेक होता है तो उस टाइम पे आपके जितने भी ऑटोमेटिक जो सर्किट्स है, अगर आप उसको प्रोग्राम करें तो सारे सर्किट ऑटोमेटिकली ही प्रोग्राम हो जाते हैं, जिससे कि हमको मैनुअल पैचिंग नहीं करना पड़ता है। अभी आपके कोरल मक्स के अंदर ये इश्यूज ऐसे आते हैं कि जब भी कहीं पे केबल कट होता है तो हमको कहीं ना कहीं पे मैन्युअली सब सर्किट को पैच करके चलाने पड़ते हैं। अभी ये जिस टाइम पर आपका एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था बड़ौदा डिवीजन में, जी। उस टाइम पे हमने मितेश भाई को और उदय भाई को ये सजेशन दिया था कि जिस तरीके से आपके मक्स के अंदर MIC कार्ड, CPU कार्ड और इवन कार्ड जिस तरीके से कंपलसरी कार्ड रहते हैं, उस तरीके से आप LPC कार्ड को ऑप्शनल कार्ड ना रख के उसको भी एक कंपलसरी कार्ड रखिए, ताकि ये जो मैनुअल पैचिंग का जो हमारा एक हेडेक रहता है कोरल मक्स के अंदर कभी भी किसी भी केबल कट के इंसिडेंट्स में, तो वो मतलब कि हमारा हेडेक हट जाए। अच्छा, क्योंकि मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। इस पे हाँ, मैं एक क्योंकि छोटा सा अपडेट ये देता हूँ आपको। इस चीज को सर आपको एज ए कंपलसरी कार्ड सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब कि जहां पर भी कोरल के मक्स लगे रहते हैं, किसी भी केबल कट के फेलियर में हमको वहां पे जाके मैन्युअली पैच करना पड़ता है। अभी सर अगर मैन्युअली ही पैच करना है, देन फिर बाद में जो प्रिमिटिव हम 6 केबल के ऊपर कंट्रोल सर्किट्स चलाते थे वो क्या बुरे हैं। अभी जैसे कि ये वेबफिल मक्स में जैसे केबल कटता है तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से सारे सर्किट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं, बट कोरल के केस में क्योंकि LPC कार्ड एक कंपलसरी कार्ड नहीं है और ये चीज पहले से नहीं बताई जाती है कि मतलब LPC कार्ड भी अलग से लेना पड़ेगा, उस वजह से मतलब कि जब भी किसी भी केबल कट के फेलियर होते हैं तो हमको अलग से मैन्युअली पैचिंग करना पड़ता है। इसलिए सर आप ये LPC कार्ड को एज ए कंपलसरी कार्ड उसके अंदर सप्लाई करिए। आप भले ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आप उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लीजिए, बट LPC कार्ड आपको एज ए कंपलसरी कार्ड देना ही पड़ेगा। सर कॉन्ट्रैक्टर कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देता किसी को भी, किसी भी वेंडर को। कॉन्ट्रैक्टर तो कॉम्पिटिशन वो सारी चीजें देखता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक्स्ट्रा पैचिंग हम सर मैं रिवर्स, ऐसा नहीं कह रहा, एक देखिए मैं ऐसा सुन तो लीजिए मेरी बात। रिवर्स पैचिंग के केस में इशूज बैकफिल में भी आते हैं, कोरल में भी आते हैं। रिवर्स पैचिंग होती है। रिवर्स पैचिंग को ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट सबसे पहले कोरल ने किया था, क्योंकि इवन की ये प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी पाथ जो है कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, तो उसके अंदर इको आने लगती है। कभी 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 इको आती है उसके अंदर, जबकि मीडिया आपका पूरा थ्रू है। इन दैट केस समटाइम्स इको आती है। हम उस इको को अवॉइड करने के लिए, समटाइम्स उस इको को अवॉइड करने के लिए हम रिकमेंड नहीं करते कि ऑलवेज पैच करके रखें। हमने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाल दिया। इनफैक्ट हमने एक सॉल्यूशन निकाल दिया। आप जो है मेन स्टेशन के ऊपर एक एलपीसी एज ए स्विच लगाइए। अभी तो एलपीसी के प्रोटेक्शन के केस में क्या होता है, हर मक्स में एलपीसी लगाना होता है कंप्लीट मीडिया प्रोटेक्शन करने के लिए। रिवर्स पाथ प्रोटेक्शन जो चाहते हैं, हमने एक इंट्रोड्यूस किया, वो हमने अभी किसी को एक्सप्लेन नहीं किया। आप मेन मक्स पे एक एलपीसी लगाइए एज ए स्विच। वो डिटेक्ट करेगा, कहीं पर भी मीडिया फेलियर होगा तो आपको रिवर्स पाथ को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। आपको बड़ौदा में चाहिए, मैं मितेश जी को बोलूंगा, वो आपको एक साइड पर लगा के आपको चला के दिखा देगा, प्रोवाइडेड आपका एंड नोड से मेन साइड के ऊपर एक्स्ट्रा इवन आया हो। नहीं, इवन इश्यू नहीं होते वेद प्रकाश जी, आप इस चीज को मतलब अभी भी आप करिए तो मैं एक एलपीसी में भेजता हूं। आप एंड नोड से मेन नोड पे जिस भी लोकेशन पे आप कहेंगे वहां पर कनेक्टिविटी दीजिए। मेन नोड पे हम एलपीसी लगाएंगे, आपका ऑटो स्विच करके देगा विदाउट एनी डिस्टरबेंस। नहीं, मैं ये चीज तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आपका मक्स कभी भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है या कुछ भी होता है। नहीं, रिवर्स पाथ पे जब हम कनेक्ट, सर हम रिवर्स पाथ पे जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो वो समटाइम्स इको आती है, समटाइम्स इको आती है। वो हमने ऑब्जर्व किया।
हमने फील्ड में भी हमने चलाया, हमने फील्ड में देखा और ऑब्जर्व किया, तो हम उस चीज को वैसा इसलिए हमने उसको हटा दिया कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज आप चेक कर रहे हैं इस मूवमेंट पर नहीं आए, जिस मूवमेंट पे इमरजेंसी हो उस मूवमेंट पे डिस्टर्बेंस आ जाए उस केस में। तो दैट्स व्हाई ऐसी चीजें ऐसा हम रिकमेंड नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमने एक नया उसके लिए सॉल्यूशन निकाला कि उसको एलपीसी ब्रेक करके रखेगा, जबकि मीडिया थ्रू है, मीडिया जैसे ही ब्रेक होगा एलपीसी ऑटोमेटिक उसको कनेक्ट करेगा। नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि ये फैसिलिटी तो देखिए, आप मैं जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं वेबफिल को सुपीरियर प्रूव करने ना की ना ना कोशिश ना मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आप ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब जी। जिस तरीके से आपका जो एलपीसी कार्ड है वो ब्रेक करके रखेगा, हम्म दैट थिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग इन वेबफिल। मतलब कि वेबफिल के अंदर हमको कुछ टेबल सेट करने पड़ते हैं, और उन टेबल सेट करने की कंडीशंस में फॉर एग्जांपल कि जब भी कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन जनरेट होता है, तो जो वेबफिल के मक्स हैं वो ऑटोमेटिकली उन टेबल्स को ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर देता है। मतलब कहीं पर भी ह्यूमन इंटरफेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। अभी देखिए कि जिस तरीके से कोरल के मक्स है ना, कोरल के मक्स को मैं वेबफिल मक्स से फार सुपीरियर समझता हूँ। उसके रीजन ये है कि वेबफिल के मक्स में नॉर्मली जो सब्सक्राइबर कार्ड है और जो पीएसयू कार्ड है वो अक्सर उड़ते हैं। और मैंने आपके जो यहाँ पे आनंद गोदरा सेक्शन के अंदर कोरल के मक्स लगे हुए हैं, मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना है कि वहां का कोई सब्सक्राइबर कार्ड फॉल्टी हो गया, पीएसयू कार्ड फॉल्टी हो गया। मतलब हमारा वेबफिल में मेन सरदर्द उसका पीएसयू कार्ड, उसका सब्सक्राइबर कार्ड है। मतलब कि ये दो हमारे सरदर्द है वेबफिल में। बट वेबफिल की ये जो खासियत है कि मतलब ये जो टेबल्स को वो ऑटोमेटिक स्विच कर देता है, ठीक है ना, वो सेम चीज आपके कोरल में भी होनी चाहिए। हाँ, इसलिए हमने ये सजेशन दिया था कि जो आपका एलपीसी कार्ड है वो हर मक्स में एज अ कंपलसरी कार्ड होना चाहिए। चलिए ठीक है मैं करता हूँ, एक जो है मक्स की एक लाइन के साथ में एक एलपीसी कार्ड मैं करता हूँ, उसमें ऐड करा देते हैं एक एलपीसी कार्ड। तो आपकी जो रिवर्स पाथ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिवर्स पाथ की, लेकिन सिंगल मीडिया फेल्योर के केस में अगर आप इस पैटर्न में देखेंगे तो ये सिंगल मीडिया फेल्योर के केस में काम करता है। सिर्फ मल्टीपल मीडिया फेल्योर जब हो जाते हैं ना, तो मल्टीपल मीडिया फेल्योर के केस में काम नहीं करता है। आपका दो जगह से अगर मीडिया फेल्योर हो गया, वही है वो नहीं, LPC कार्ड चाहिए मल्टीपल जब आप हर आपके मक्स में एलपीसी, मल्टीपल हाँ हर मक्स में एलपीसी कार्ड लगा तभी देते हो हैं। सकता है। ये हर एक मक्स हाँ में जी ये कॉमन है। जी जी हाँ, ये कॉमन है, ये हर एक मक्स के लिए कॉमन है। ठीक है, जी मल्टीपल कट होने से आपको ऐसा ही हर एक स्टेशन में चाहिए। जी जी मगर एंड टू एंड प्रोटेक्शन के लिए आप जो बोल रहे हैं, एक एंड में अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो गेन बढ़ जाता है, इनको होगा ही होगा, इसमें कोई जी शक नहीं है। तो उसमें जी भी आप बोल रहे हैं कि कोई भी एक टर्मिनल मक्स में एक एलपीसी कार्ड लगा देंगे, That's जी all। मगर ये जी अगर फुल प्लेजर चाहिए तो हर एक स्टेशन में लगाना पड़ेगा ये facility। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी 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 ठीक है, जी। वही चीज है, तो उसको हर एक स्टेशन के लिए कॉमन बना दे, वही चीज चल रहा है ना डिस्कशन। हर एक स्टेशन के लिए आरडीएसओ के साथ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक जॉइंट मीटिंग हुई थी। हमने रिकमेंड किया था, कोरल ने एंड पनकॉम ने रिकमेंड किया था, क्योंकि बैफिल के पास नहीं है तो बैफिल ने अपोज किया था। तो आरडीएसओ ने कहा था कि नहीं, हम एक वेंडर के पास नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं करेंगे कि हम दो के फेवर में डालें। अगर वो भी उसको डेवलप कर सकते, करने की पोजीशन में होते तो हम उसको डालते, इसलिए हम नहीं डाल रहे। हम जो है यूजर को हम ये लिख देंगे कि यूजर को अगर रिक्वायर्ड है तो यूजर स्पेसिफिकेशन में जो टेंडर फ्लोट कर रहा है उसमें लिख दे एलपीसी इज मैंडेटरी। बस ठीक है, ठीक है ना, यूजर लिख दे तो वो ले ले, और यूजर नहीं लिख रहा तो फिर यूजर विदाउट एलपीसी ही ले मिलेगा उसको। आरडीएसओ ने साफ साफ यही जो कहा। भी ऑफर जाएगा उसमें क्लियरली हाँ, उसमें मेंशन क्लियर कर मेंशन कर दें, कोई इशू नहीं है फिर। और इसमें अब तो और एक चीज है, सपोज बीच में आपका कोरल रह गया, हाँ बीच में कोरल है, दोनों एंड वेफिल है, ठीक है, जी जी मैं तो एनएमएस को एक्सटेंड करके आपका एनएमएस को एक्सटेंड करके ले लिया इथरनेट में, ठीक है, कोई जी जी प्रॉब्लम नहीं है। मगर जी वेफिल का क्या होगा, फार एंड जो वेफिल सेक्शन होगा उसका एनएमएस को हम कैसे लेंगे? उसका एनएमएस नहीं ले जा सकते क्योंकि वो सीरियल पे चलता है सर। उसका एनएमएस नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। उसका एनएमएस नहीं ले जा सकते, वो सीरियल पे चलता है।
मैंने इसीलिए जो है आपको देखिए मेरे मक्स जो है ना लास्ट में दिखाए, कोई भी लाइन चल रही है उसमें ऐड ऑन करना है आपको। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करिए। ठीक ठीक जी ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। जी सर। कॉन्फ़िगरेशंस में आप सीरियल इंटरफेस और ईथरनेट इंटरफेस दोनों चला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कमांड लाइन इंटरफेस ही एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद एनएमएस एक्सप्लेन करूंगा। कमांड लाइन इंटरफेस में आपके पास पासवर्ड्स का मोड होता है। हम एक ही मेन पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन मोड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, बाकी के पासवर्ड्स हम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि बाकी के पासवर्ड डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाते हैं, इसलिए मेन पासवर्ड जो रिक्वायर्ड है वही हम देते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो मक्स में करना होता है आपको, कोरल के मक्स में नोड आईडी, नोड आईपी, चूंकि ये आईपी बेस्ड चलते हैं इसलिए आईडी और आईपी डालना कंपलसरी होता है। इसके बाद नोड टाइप जो है बाय डिफॉल्ट जो है मेरा मक्स इनलाइन बना आता है। आपको नोड टाइप उसमें डिफाइन करना होता है, कौन सा गेटवे है, कौन सा इनलाइन। अगर नहीं करते तो वो इनलाइन ही दिखाएगा। इसके बाद एनएमएस से चलाना है तो एनएमएस आईपी उसमें डालनी है। नोड नेम, नोड कॉन्टेक्ट और नोड लोकेशन एनएमएस के ऊपर सिस्टमैटिक मक्स को दिखाने के लिए नोड नेम और नोड लोकेशन आपको दिखाना है। नोड कॉन्टैक्ट आप उसमें डालें या ना डालें, नोड कॉन्टैक्ट के लिए हमने एक एनएमएस में डिफरेंट वो बना दिया। आप मक्स में डाल रहे हैं तो अच्छा है, नहीं डाल रहे हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए नोड कॉन्टैक्ट को। इनिशियली हमने नोड कॉन्टैक्ट मक्स के अंदर प्लान किया था कि जिस मक्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मक्स जो है उस पर्सन को उसकी फेलियर का एसएमएस अलर्ट देगा। वो हमने इनिशियली डे 1 से मक्स में कोरल के में था कि वो एसएमएस अलर्ट देगा, प्रोवाइडेड आपने उसमें एक जीएसएम इंटरफेस कार्ड लगाया हो। अब हमने उस कंपल्सन को हटा दिया है। आप एसएमएस अब एनएमएस से देंगे, मैं आपको आगे एनएमएस में दिखाऊंगा। डिफॉल्ट गेटवे, नेट मास्क, ये चीजें और एनएमएस में आपको उसमें मक्स में डाल दें तो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं डालें तो ये कंपल्सन नहीं है। इसके बाद डीसीसी चैन बाय डिफॉल्ट जो है हम 6 नंबर और 7 नंबर स्लॉट के ऊपर कार्ड्स का डीसीसी चैन फिक्स करके रखते हैं। अगर आप कार्ड की लोकेशन, इवन कार्ड की लोकेशन डिफरेंट पर लगा रहे हैं तो आपको डीसीसी चैन उसमें लगाना दिखाना होती है कि कौन सा कार्ड जो है गेटवे की तरफ कनेक्टेड है और कौन सा कार्ड डिफरेंट साइड में कनेक्टेड है। सेव कमांड होता है और कमिट कमांड होता है। ये आपके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीएलआई इंटरफेस से होते हैं, जो कि आगे कमांड्स मैंने दिखाए हुए हैं। नोड आईडी का सिंपल कमांड होता है, सीमक्स कॉन्फ़िग बेसिक पैरामीटर है। उसके बाद जो कमांड आपको देनी नोड आईडी, देन नोड आईडी और उसका आईडी नंबर। बेसिक कमांड का फ्रेज होता है सीमक्स स्पेस कॉन्फ़िग, ये बेसिक कमांड का फ्रेज होता है। उसके बाद आपको जो कमांड देनी नोड आईडी तो नोड स्पेस आईडी और आईडी जो भी देनी है आपको 20, 10, 1 वो दे देते हैं। ऐसे ही आपको आईपी देनी है, सीमक्स कॉन्फ़िग नोड आईपी, देन आईपी एड्रेस स्पेस देके, डॉट्स नहीं देते हम इसमें आईपी में, डॉट्स वो बाय डिफॉल्ट लेता है। सेम गेटवे नोड और इनलाइन नोड आपको डिफाइन करना है तो इट्स फॉर नोड एंड नोड 4 टाइप के, तो आपको सेम कमांड देनी है, सीमक्स कॉन्फ़िग नोड टाइप 0 फॉर गेटवे, 2 फॉर इनलाइन, 1 फॉर S4 एंड 3 फॉर एंड नोड। कमांड का तरीका सेम है, सिर्फ आपको बीच का फ्रेज चेंज करते जाना है। पूरे मक्स की सारी कमांड्स वैसे ही चलती हैं। आपको नोड्स का इनलाइन, S4 एंड नोड और गेटवे जो डिफाइन करना वो किस तरीके से, एनएमएस ऑलवेज गेटवे नोड से कनेक्ट होता है क्योंकि गेटवे नोड के पास सारी इंफॉर्मेशन ईथरनेट से आती है। नोड नेम आप उसमें डाल दें तो एनएमएस के ऊपर प्रॉपर दिखता, नोड नेम दिखेगा और उसका नोड लोकेशन दिखेगा एनएमएस के ऊपर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जरूरत नहीं है, अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने चेंज कर दिए। आप इवन का नाम दे सकते हैं कि स्टेशन पे इवन 1 किसी भी स्टेशन का आप से इवन टूवर्ड्स आनंद, टूवर्ड्स बड़ौदा, आप इवन का नाम दे सकते हैं। एनएमएस आईपी आपको डिफाइन करना, अगर एनएमएस चला रहे हैं तो एनएमएस आईपी आपको डिफाइन करना कंपलसरी है। डीसीसी चेन आपको डिफाइन करना उस मूवमेंट पे कंपलसरी है अगर आपने 6 और 7 के अलावा किसी और स्लॉट में इवन लगाए हैं।
कमांड सेम है, कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे डीसीसी चैन में कमांड थोड़ी बड़ी हो जाती है, सीमक्स कॉन्फ़िग डीसीसी स्पेस चैन, इसमें इवन कार्ड नंबर देना होता है, उसका टाइम स्लॉट नंबर देना होता है। सेव नोड और कमिट में सीमक्स, हाँ जी सर, जीयूआई बेस्ड नहीं है ये, जीयूआई बेस में आपको आगे कॉन्फ़िगरेशन आपका मैंने आपको बोला, मैं आपको पहले कमांड लाइन इंटरफेस दिखा रहा हूँ, जीयूआई इंटरफेस बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जी, जीयूआई इंटरफेस इसके बाद आ जाएगा। ये बेसिक कमांड्स हैं, अगर जीयूआई एनएमएस नहीं चल रहा, कहीं से कुछ करना है, तो बेसिक कमांड्स मैंने आपको दिखा दी। ये सिंपल कमांड्स हैं, बहुत सिंपल कमांड्स रखी हुई हैं हमने सिस्टम के अंदर। टाइम स्लॉट मैपिंग सिंपल, आपको फर्स्ट इवन से सेकंड इवन या सेकंड से थर्ड इवन की टाइम स्लॉट मैपिंग करनी है, तो टाइम स्लॉट मैपिंग भी सिंपल कमांड चलती है, सीमक्स कॉन्फ़िग। अगर टाइम स्लॉट से आपको किसी एनालॉग पोर्ट को करना है तो टीएस पोर्ट कमांड होती है, अगर टाइम स्लॉट टू टाइम स्लॉट करना है तो टीएस कमांड होती है। बाकी सारा फ्रेज सेम है। आपको टीएस दिया है तो दोनों इवन कार्ड्स के स्लॉट के नंबर देना है, टीएस पोर्ट दिया है तो इवन कार्ड और पेरिफेरल कार्ड के पोर्ट नंबर देना है। एकदम सिंपल वे में कमांड्स हमने प्लान की हुई है इसके। ये इवन टू पोर्ट, यहाँ पर जो कमांड दी हुई है टीएस पोर्ट, तो इवन कार्ड नंबर, इवन का टाइम स्लॉट, पेरिफेरल कार्ड नंबर, पेरिफेरल कार्ड का पोर्ट नंबर। अगर आपको मल्टीपल देनी है, मान लीजिए एक कार्ड 8 पोर्ट का है, आपको 8 की कमांड देनी है, तो रेंज दे दीजिए उसकी, यहाँ से स्टार्ट होके 8 दे दिया तो पूरे 8 स्लॉट सीक्वेंस में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अगर आपको रिमूव करना है तो उस कार्ड के आगे REM लिख दीजिए, तो वो जो स्लॉट आपने कॉन्फ़िगर किया था वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आगे पैरामीटर्स डाल के आपको इसमें दिखाया हुआ है। देखिए टीएस पोर्ट में 6 नंबर इवन का, 5 नंबर टाइम स्लॉट, 3 नंबर कार्ड के 1 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड हो गया है। और यहाँ पर हमने इसके आगे 7 दे दिया, मतलब 7 के लिए इकट्ठी कमांड चली गई। तो इवन कार्ड 6 नंबर का, 5 6 7 8 9 10 नंबर के पोर्ट्स 4 नंबर कार्ड के 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट से कनेक्ट हो गए। यहाँ हमने रैम कमांड दे दी, तो 6 नंबर इवन का, 5 नंबर टाइम स्लॉट, 3 नंबर कार्ड के 1 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड था, वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही टीएस कमांड, इसके बाद टीएस कमांड चलेगी, तो टीएस कमांड में दोनों तरफ इवन होंगे। जैसे इसमें टीएस पोर्ट में पेरिफेरल कार्ड आ गया था, टीएस में इवन होंगे। जैसे हमने एक इनपुट इवन से सीधा का सीधा हमें बाईपास करना है चैनल को, तो इनपुट इवन के पोर्ट को आउटपुट इवन के पोर्ट के साथ में मैप कर देते हैं, जो कि ड्रॉप नहीं करने पोर्ट को, उसको मैप कर देते हैं। तो 6 नंबर इवन का 2 नंबर पोर्ट 7 नंबर इवन के 2 नंबर पोर्ट से कनेक्ट हो गया। या हमें कंटिन्यू कमांड देनी है, 6 नंबर इवन के 2 नंबर, 7 नंबर के 2 नंबर से 10 कंटिन्यू टाइम स्लॉट चल रहे हैं, तो 6 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कनेक्ट हो गए। इसके बाद कॉन्फ्रेंस सर्किट आते हैं। कॉन्फ्रेंस सर्किट के लिए हमने टीएस कॉन्फ एंड पोर्ट कॉन्फ 2 कमांड्स बनाई हुई हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में आपको टाइम स्लॉट डालने हैं और पेरिफेरल के पोर्ट्स डालने हैं। तो टीएस कॉन्फ टाइम स्लॉट डालने के लिए होती है, और पोर्ट कॉन्फ एनालॉग पोर्ट, ENM पोर्ट, हॉटलाइन पोर्ट और आपको सीओ के पोर्ट्स डालने के लिए होते हैं पोर्ट कॉन्फ। इसको भी सेम वे में आप मल्टीपल डाल सकते हैं और सिंगल डाल सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मैक्सिमम 10 मेंबर आप डाल सकते हैं। ऐसी कोरल के मक्स में 21 कॉन्फ्रेंसेस होती है। आप हर कॉन्फ्रेंस, जरूरी नहीं है कि एक मेंबर एक ही कॉन्फ्रेंस का पार्ट हो, मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस चला सकते हैं आप। इसके बाद आ जाते हैं हम वेब बेस्ड एनएमएस इंटरफेस से, जो कि वेब बेस्ड सारी चीजें चलाता है। कोरल का एनएमएस मतलब कॉन्फ्रेंस नंबर जो है वो सीरियली हम वंस कॉन्फ्रेंस नंबर जो है हम सीधा 1 से 21 तक सीरियली डाल सकते हैं। हाँ, 0 से 21 दिया हुआ है हमने, 0 से 20 दिया हुआ है, 0 से 20 21 कॉन्फ्रेंसेस दी हुई हैं। आप कॉन्फ्रेंस का नाम भी डिफाइन कर, तो ये वर्चुअल पोर्ट है, ये फिजिकल नहीं है। हाँ, आप कॉन्फ्रेंस का नाम भी दे सकते हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस को नाम भी दे सकते हैं।
नाम से भी चला सकते हैं, पर हर कॉन्फ्रेंस के अंदर मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। 10 से ज्यादा मेंबर्स कॉन्फ्रेंस में नहीं डालते। इसके बाद एनएमएस के मेंबर मतलब मेंबर मतलब जैसे मक्स आनंद का मक्स है, आनंद के मक्स पे आप यानी कि टोटल 10 मेंबर डाल सकते हैं। मतलब 5 इवन के टाइम स्लॉट डाल दिए तो 5 पेरिफेरल डाल सकते हो, या 2 इवन के टाइम स्लॉट डाल दिए तो 8 वो डाल सकते हैं। यानी कि 10 मेंबर, एक मक्स के 10 मेंबर डाल सकते हैं आप उसमें। ठीक है। ठीक है। एनएमएस जो है मेरा सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के ऊपर चलता है। एनएमएस का एक सर्वर पोर्शन होता है और एक क्लाइंट पोर्शन होता है। सर्वर पोर्शन ऑलवेज मक से कनेक्ट होता है। क्लाइंट पोर्शन आप नेटवर्क के ऊपर किसी भी पीसी में चला सकते हैं, किसी भी डिवाइस में चला सकते हैं। आपका नेटवर्क जहां तक होगा आप उतने क्लाइंट चला सकते हैं। क्लाइंट्स की लिमिटेशंस नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन लाइसेंसिंग ओनली। लिमिटेशन नहीं होती, आप कितने भी क्लाइंट चला सकते हैं एक सर्वर के साथ में। तो आपका सर्वर कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आपको पूरी मक्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्वर में आएगी। क्लाइंट उस सर्वर के साथ कनेक्ट होके उस इंफॉर्मेशन को लेके और कंटिन्यू चला सकता है। इसके बाद मल्टी लेवल यूजर एडमिनिस्ट्रेशन है क्लाइंट के अंदर। आप यूजर डिफाइन कर सकते हैं किस यूजर के पास क्या फैसिलिटी होगी और कौन सा यूजर कितना एक्सेस कर सकता है उसको। आपको एनएमएस में बाकी के स्टैंडर्ड डिस्कवरी, पोलिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, नेटवर्क नोटिफिकेशन एंड अलार्म समरी रिपोर्ट्स, ये नेटवर्क के एनएमएस के बेसिक फीचर्स होते हैं, जिसमें कि आपको रिपोर्ट्स जो है ये मेरा एडेड एडवांटेजेस हैं। रिपोर्ट्स एंड नोटिफिकेशन सर्विसेज कोरल के एनएमएस में ही मिलेंगे आपको। मल्टीपल रिपोर्ट्स आप इसमें निकाल सकते हैं, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन वाया एनएमएस। एनएमएस में क्लाइंट इंटरफेस के ऊपर जब आप लॉगिन करते हैं, यूजर आप और पासवर्ड उसका डालेंगे तो आप उसमें एंटर होंगे। आप जिस तरह का पासवर्ड डालेंगे उस लेवल पर आप इसमें एंटर होंगे। एंटर होते ही आपको जो एनएमएस का पेज मिलेगा उसमें एक डिस्कवरी मोड होता है। डिस्कवरी मोड में आप डिस्कवरी पैनल से आप डिस्कवरी कर सकते हैं। आप टोटल पूरे सबनेट का डिस्कवरी कर सकते हैं या स्पेसिफिक आईपी बेस में डिस्कवरी कर सकते हैं। डिस्कवरी का स्टेटस आप देख सकते हैं, कितने मार्क्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं, या किसी डिवाइस को रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। डिस्कवरी जब हो जाती है आपका तो ये मैप दिखाता है आपको। मैप मार्क्स का कितने मार्क्स आपके कनेक्टेड है, उस मैप में मार्क्स का नाम और उसकी लोकेशन दोनों चीजें दिखाता है। अगर आपने मार्क्स का नाम डिफाइन नहीं किया तो उसमें सी मार्क्स बाय डिफॉल्ट आता है, और उसकी लोकेशन आपने जो डिफाइन की है वो लोकेशन आपको उसमें दिखेगी। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अलार्म विंडो एक विंडो दिखती है नीचे। उस विंडो में आपको करंट अलार्म्स दिखते हैं, ओवरऑल अलार्म्स दिखते हैं, और उसमें बाकी के पैरामीटर्स जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो देखिए। मैप व्यू के बाद कॉन्फ़िगरेशन पैनल होता है। उसमें किसी भी मक्स के मैप के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके मक्स के पर्टिकुलर मक्स के पैरामीटर्स खुलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसकी अलार्म्स, हिस्ट्री अलार्म्स, उस नोड की अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। उसके सेल्फ पैरामीटर्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या सेल्फ पैरामीटर डिस्प्ले आप वहां पर देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जब आप जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शंस आपके पास एक चेसिस व्यू का आता है और एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन पैनल का। अगर आप चेसिस व्यू पर क्लिक करते हैं तो मक्स का चेसी आपके पास ओपन हो जाता है। उस मक्स में कौन कौन से कार्ड्स किस तरीके से चल रहे हैं वो आपको दिखाएगा। किसी भी जब आप चेसी व्यू के ऊपर जाते हैं, आप किसी भी कार्ड के ऊपर राइट क्लिक करके उस कार्ड के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, कितने पोर्ट उसके कहाँ-कहाँ चल रहे हैं, या उस कार्ड का वर्जन देख सकते हैं। आप यहाँ पर ही राइट क्लिक करके किसी भी कार्ड को डिलीट कर सकते हैं, कोई भी कार्ड इसमें ऐड कर सकते हैं।
ये मैंने आपको आगे की स्क्रीन पे ऐड कार्ड, ब्लैंक स्पेस पे ऐड कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन विंडो। जब कॉन्फ़िगरेशन में आप मक्स के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा मेनू आता है उसका। उस मेनू में आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स होते हैं। पहली विंडो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की होती है, सेकंड डीसीसी कॉन्फ़िगरेशन चैनल की होती है, इसके बाद टाइम स्लॉट मैपिंग होती है। मैं सीक्वेंशियली आपको दिखाता हूँ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सिर्फ व्यू करने के लिए होता है, और डीसीसी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने इनिशियली बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया था वो व्यू करने के लिए होता है। इसके बाद आपकी थर्ड विंडो आती है टाइम स्लॉट मैपिंग। टाइम स्लॉट मैपिंग में दो ऑप्शन होते हैं। जैसे जाएंगे तो व्यू टाइम स्लॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे ग्रीन में मैंने विंडो दिखाई, वो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से टाइम स्लॉट कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हैं। अगर आपको यहीं से कॉन्फ़िगर करना है, ऐड पर क्लिक करिए और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। जिसको आप सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे वो आपका कॉन्फ़िगरेशन में ऐड हो जाएगा टाइम स्लॉट। सेम टाइम स्लॉट के बाद आपका लोकल पोर्ट मैपिंग आता है, जिसमें कि टाइम स्लॉट में आपको इवन की मैपिंग होती है, लोकल पोर्ट में आपके पेरिफेरल कार्ड्स की मैपिंग होती है। उसमें भी सेम ऑप्शन होते हैं, आप व्यू मैपिंग स्टेटस देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं किसी को भी। थर्ड वन कॉन्फ्रेंस मैपिंग होती है। आप देखेंगे 0 to 20 कॉन्फ्रेंस यहाँ से क्रिएट करेंगे, और यहीं से कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स, हर कॉन्फ्रेंस में मैक्सिमम 10 मेंबर्स आप डाल सकते हैं। ये मक्स लेवल, ये कॉन्फ़िगरेशन मक्स लेवल पे हो रहा है। जिस मक्स को आपने राइट क्लिक करके खोला था उस मक्स में हो रहा है। हर मक्स में आप 21 कॉन्फ्रेंसेस, और हर कॉन्फ्रेंस में 21 मेंबर्स आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद ये जो लूप प्रोटेक्शन जो आपका होता है विदाउट एलपीसी, उस लूप प्रोटेक्शन को आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो लूप प्रोटेक्शन आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड अगर आपने रिवर्स पाथ कनेक्ट किया हुआ है, रिवर्स में इवन कनेक्ट किया हुआ है, तो कभी उसमें डिस्टरबेंस आ सकता है। अगर आपने वहां पर एंड नोड या मास्टर नोड में एक एलपीसी कार्ड लगा दिया है और ये रिवर्स पाथ, कंप्लीट मक्स का रिवर्स पाथ फुल प्रोटेक्शन टाइप में, ऑल यहाँ से सिलेक्ट कीजिए ऑल प्रोटेक्शन, और आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपका ऑटोमेटिक चलने लगेगा, एलपीसी स्विच कर देगा। इसके बाद पोर्ट डायग्नोस्टिक्स। पोर्ट डायग्नोस्टिक के अंदर आप किसी भी कार्ड के एफएक्सओ, एफएक्सएस, ईएनएम और सीएलसी के डायग्नोस्टिक नियर एंड फार एंड कॉन्फ़िगर करके आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक टोन टेस्ट देते हैं। टोन टेस्ट आपको ईएनएम के ऊपर टोन चेक करने के लिए टोन टेस्ट पैरामीटर्स को आप यूज कर सकते हैं। टोन टेस्ट में हमने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। टोन टेस्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, टोन टेस्ट का एक ऑप्शन होता है विद लूप प्रोटेक्शन और एक विदाउट लूप प्रोटेक्शन। जब लूप प्रोटेक्शन पे आप टिक कर देंगे तो टोन यहाँ से जनरेट करेगा, लेकिन रिवर्स से वहां से लूप करके लेके आ जाएगा, तो आपको टोन यहाँ के पोर्ट के ऊपर टीएक्स से टोन फीड करेंगे, आरएक्स पे टोन आपके पास आ जाएगी, यानी कि टोन सिस्टम ऑटोमेटिकली फीड करेगा और टोन यहाँ पर रिवर्स में आ जाएगी। और एक होता है विदाउट लूप प्रोटेक्शन, तो यहाँ विदाउट लूप, तो यहाँ से टोन जब आप फीड करेंगे तो वहां फार एंड पे जाएगी, लेकिन लूप होके नहीं आएगी, आपको फिजिकल लूप करना है तब आपका टोन रिवर्स में आएगी चेक करने के लिए। हमने दोनों मोड इसमें डाले हुए हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर आपको पैरामीटर्स जो इनिशियल मैंने विंडो दिखाई थी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिर्फ दिखाएगा कि मक्स में क्या आपने आईपी डाले हुए हैं, मक्स का नाम क्या है, लोकेशन क्या है। इसके बाद टाइम स्लॉट्स की टोटल मॉनिटरिंग जो है, टाइम स्लॉट्स आपके कितने टाइम स्लॉट्स फ्री हैं, कितने टाइम स्लॉट्स कहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हैं, वो एक टाइम स्लॉट की विंडो में पूरा का पूरा आपको एक बार में दिखा देगा। पूरे 32 चैनल आपको, 2 चैनल आपको सिग्नलिंग के होंगे, बाकी के 30 चैनल का कॉन्फ़िगरेशन आपको एक साथ दिखा देगा। इसके बाद एक करंट स्टेटस होता है मक्स का। करंट स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो आपको करंट स्टेटस आपको दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से कार्ड्स आपके प्रेजेंट हैं और कौन सा कार्ड प्रेजेंट नहीं है, या कौन सा कार्ड प्रेजेंट है तो वो मिसबिहेव कर रहा है, वो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको दिखाएगा।
सेंटर में आपको इवन दिखाएगा, दोनों इवन कनेक्टेड। इवन के ऊपर अगर कोई अलार्म है तो वो आपको सेंटर में दिखाएगा, अदरवाइज कॉन्फ़िगर्ड है, प्रॉपर सिस्टमेटिक है तो ओके और ग्रीन दिखाएगा। अलार्म है तो उसका डिफरेंट कलर से वो अलार्म दिखाएगा आपको, वहां पर अलार्म लिखा भी आएगा और डिफरेंट कलर से दिखाएगा। राइट हैंड साइड पर आपको हर पोर्ट के आगे उसका स्टेटस दिखाएगा, कौन सा पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड है और कौन सा अनकॉन्फ़िगर्ड है, और नीचे आप स्लाइड करते जाएंगे सारे पोर्ट्स आपको दिखा देगा, पूरे मक्स में जितने कार्ड्स लगे हैं उनके पोर्ट्स दिखाएगा। किसी भी मक्स में आप राइट क्लिक करके करंट स्टेटस पे चले जाएंगे तो आपको मक्स का स्टेटस आपको दिखा देगा उसका। इसके बाद जो है मक्स में हमने टेम्परेचर वोल्टेज का पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो जो इनिशियली जो विंडो होती है मैप व्यू, जो मैंने आपको दिखाया था, आप इनिशियली अगर मैं जाऊं मैप व्यू की विंडो के ऊपर, मैप व्यू में नीचे जो विंडो आती हैं यहाँ पर एक तो अलार्म इन्फो विंडो आती है, सेकंड जो है आपने राइट क्लिक करके अगर सेल पैरामीटर्स ओपन कर दिए तो सारे मक्सेस के टेम्परेचर वोल्टेजेस सब कुछ यहाँ पर दिखाता रहेगा। अब इस टेम्परेचर वोल्टेज में आपको बेनिफिट कहां पर है, सीक्वेंस से टेम्परेचर वोल्टेज दिखा रहा है वो सभी का, लेकिन किसी भी मक्स का जो अपग्रेड होगा, अगर किसी में के मक्स में टेम्परेचर वोल्टेज चेंज हुआ तो वो ऑटोमेटिकली उसको सबसे ऊपर लेके आ जाएगा, यहाँ पर रिफ्रेश करेगा। हर 2 वोल्ट के वोल्टेज में डिफरेंस और 1 डिग्री के टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर वो इमीडिएट उसको चेंज करता है, यहाँ पर इमीडिएट विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स इमीडिएट करता है वो, मिली सेकेंड्स में। इसके बाद एक चेंज और अहमदाबाद की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने इसमें किया हुआ है। उन्होंने कहा है अगर किसी में 2 वोल्ट का डिफरेंस नहीं आया, कहीं आधा वोल्ट का डिफरेंस आ गया या आधा डिग्री का टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो वो अगर हमें करना है और उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ तो हमने एवरी 5 मिनट्स वो उसको पोलिंग करने का भी हमने एक प्रोविजन दिया हुआ है। इन एवरी 5 मिनट्स सिस्टम उसके मक्स के डेटा को पोल करके लेके आएगा, अगर वो 1 डिग्री का डिफरेंस या 1 वोल्ट का डिफरेंस है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा, और वो भी उस ऑर्डर में करेगा जिसमें कि लेटेस्ट चेंज किसी के में भी हुए हो तो वो लेटेस्ट चेंज सबसे ऊपर लेके आएगा। करंट अलार्म्स का अलार्म का विंडो के अंदर भी आप किसी भी मक्स के ऊपर राइट क्लिक करके करंट अलार्म्स का देखेंगे तो उस मक्स को वो छांट के सर्च करके आपको फिल्टर आउट करके उस मक्स के अलार्म्स दिखा देगा, अदरवाइज ऑल अलार्म विंडो में सारे मक्स के अलार्म्स दिखाएगा। मक्स के अलार्म्स जो है विंडो में ऑटोमेटिकली जैसे ही अलार्म मक्स में क्लियर होगा यहां से विंडो से भी ऑटो क्लियर होते जाएंगे। और ये अलार्म सारे आपको रिपोर्ट्स में दिखेंगे। इसके बाद हमने एक इवेंट मॉनिटरिंग सर्विस, इवेंट नोटिफिकेशन सर्विस हमने इसमें डाली है, जिसको कि एसएमएस अलर्ट्स हम बोलते हैं। एसएमएस अलर्ट्स जो मक्स में है वो ऑटोमेटिकली हर मक्स के लिए जो आपने लेबल डिफाइन किया हुआ है, हर मक्स का आप डिफरेंट लेबल डिफाइन कर सकते हैं। से आनंद के मक्स में सोहिल जी और घनश्याम जी अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो आनंद के मक्स का एसएमएस नोटिफिकेशन सोहिल जी और घनश्याम जी के पास जाएगा। लेकिन वो एसएमएस नोटिफिकेशन का आप टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि E1 के ऊपर एक बेसिक अलार्म आया तो उसका नोटिफिकेशन जो है घनश्याम जी सोहिल जी के पास गया। अगर E1 पूरा डाउन हो गया तो हो सकता है वो सीनियर डीएसटी के लेवल पर भी नोटिफिकेशन आपको भेजना है, तो आपने डिफाइन कर दिया उसमें कि इस अलार्म टाइप का नोटिफिकेशन इस मक्स के लिए इस लेवल के अफसर को जाएगा, तो उस लेवल के अफसर को वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा उससे। जैसे किसी का टेम्परेचर का नोटिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन जाएगा कि टेम्परेचर एंड वोल्टेज ऑफ आनंद लोकेशन इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50.14 वोल्ट। रूटीन नोटिफिकेशन आपको भेजना है। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको इमरजेंसी नोटिफिकेशन वाला भेजना है कि अगर आपका इसका वोल्टेज जो है 38 डिग्री हो गया, वो 38 वोल्ट हो गया बैटरी का वोल्टेज, तो वो इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी अलर्ट हो गया, तो वो 38 वोल्ट को आपको कहां तक एस्केलेशन लेवल पे भेजना है, तो उस एस्केलेशन लेवल पर आपने डिफाइन किया हुआ है जैसे ही एसएमएस मॉड्यूल में, तो वो ऑटोमेटिकली वहां तक एस्केलेट हो जाएगा और उसके पास एसएमएस चला जाएगा। तो जनरली क्या होता है, अभी तक एनएमएस के ऊपर बैठ के आदमी को देखते रहना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर, यार किसी का टेम्परेचर डिफरेंट हो गया, किसी का वोल्टेज डिफरेंट हो गया, या किसी के E1 में अलार्म आ गया तो उसको देखना है।
इस सिस्टम में अगर आपने एसएमएस सर्विसेज में एक्टिवेट कर ली एनएमएस में, तो आपको ऑटोमेटिकली देखने की जरूरत नहीं है। एसएमएस पूरी टीम के ऊपर, जो टीम रिस्पॉन्सिबल उसके लिए जो डिफाइन की हुई है, उस पर एसएमएस अलर्ट आपके चले जाएंगे। कोरल का मक्स को फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हमने किया हुआ है। इस मक्स को आप फ्यूचर में टीसीसीएस के साथ में इंटरफेस भी कर सकते हैं, या इसको टीसीसीएस की तरह बना सकते हैं, या इसको आईपी मक्सेस में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। आपने मक्स का आईपी मक्स का सर्वर आपने लगा लिया और कोर आईपी नेटवर्क आपका बना हुआ है, तो मक्स के अंदर एक एक कार्ड आपको लगाना है सिर्फ, और वो उस आईपी नेटवर्क से इंटरफेस हो जाएगा। तो आपका आईपी नेटवर्क के साथ में ईएनएम इंटरफेस या जो भी लीजेसी कनेक्टिविटीज आपकी हैं, वो कनेक्टिविटीज आपकी उस पर चलती रहेंगी। और इसमें जो है आप फॉलबैक नेटवर्क टीडीएम को भी बना सकते हैं। मतलब यूआन के जगह में आईपी इंटरफेस लिया जा सकता है। हाँ, फ्यूचर में आप उसमें एक कार्ड लगाएंगे, इंटरफेस आईपी इंटरफेस कार्ड लगाएंगे, और उसको आपने मेन लोकेशन के ऊपर सर्वर लगा दिया, और उस सर्वर के साथ में आईपी के ऊपर पूरा इंटरफेस करके आप चलाना चाहें आप चला सकते हैं। इवन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इवन को आप बिटवीन स्टेशन फॉलबैक नेटवर्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टेशन, मान लीजिए स्टेशन 1 का इथरनेट ड्रॉप हो गया और इवन लिंक अवेलेबल है आपकी किसी भी तरीके से, तो वो इवन लिंक के ऊपर शिफ्ट होकर मक्स बी से बात कर सकता है, मक्स स्टेशन 2 से बात कर सकता है, और वो मेन स्ट्रीम के ऊपर चला जाएगा आईपी पे। तो इस तरह से आप इसको अपग्रेड भी फ्यूचर में कभी भी कर सकते हैं। आपका ये सिर्फ सर्वर जैसा काम करेगा और हर एक स्टेशन मीडिया गेटवे जैसा काम करेगा। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। और इसमें हम एक और चीज दे रहे हैं, जब हम मान लीजिए आप इसको प्योर मीडिया गेटवे हर स्टेशन को बना देते हैं, तो मीडिया गेटवे का जो मेन कंट्रोल कार्ड होगा वो भी हम रिडंडेंट बना रहे हैं उसको, यानी कि कंट्रोल कार्ड भी आप रिडंडेंट, और वो उस कंट्रोल कार्ड के ऊपर भी आप रिडंडेंट इथरनेट लिंक लगा सकते हैं। रिडंडेंट इथरनेट लिंक मतलब दो अलग अलग पाथ से आपका फाइबर से इथरनेट आया हुआ है वहां पे, और वो लग गया, एक पाथ टूटा तो ऑटोमेटिकली विदाउट फेल, यानी कि एलपीसी के आर्ट के केस में तो चेंज ओवर का एक टाइम होता है, इथरनेट के केस में चेंज ओवर का टाइम नहीं होता, पता ही नहीं लगता उसके अंदर। उसके केस में आपका एक्सेल काउंटर ब्रेक नहीं होगा, एक बार भी फेल नहीं होगा। इथरनेट लिंक जब चेंज होता है तो एक्सेल काउंटर एक बार भी फेल नहीं होगा आपका। अगर वो जो रिडंडेंट सर्वर जब फेलियर होगा तो रिडंडेंट सर्वर नहीं, रिडंडेंट सर्वर में भी कुछ नहीं होगा। रिडंडेंट सर्वर आपका लगा हुआ है, एक फेल हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। पता भी मतलब जो ऑनगोइंग तो चलते रहेंगे, जो कॉल इन ऐसा होता नहीं है। चलिए सीप में कोरल के सर्वर के साथ में ऐसा होता है सर। नहीं सीप में, क्योंकि अल्टीमेटली वो दूसरा नहीं, एक्टिव चलता है सर। आप मैं आपको में, हाँ एक्टिव वो आईपी में स्टैंड बाय कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक्टिव नहीं रहता है हमेशा। तो सिर्फ सर्वर का बीच में स्विचिंग में ना, तो हर एक मीडिया गेटवे को बार बार रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। नहीं होगा। आप जब बोलिए मैं टेस्ट करवा देता हूं, नहीं होगा। जब बोलिए मैं टेस्ट करवा देता हूं। अच्छा है। हाँ, कभी भी नहीं होगा आपको। इवन हम इन प्रोग्रेस कॉल भी रिडंडेंसी देते हैं आईपी सर्वर में। इन प्रोग्रेस कॉल पूरे वर्ल्ड में एक या दो कंपनीज देते हैं, उसमें से एक कोरल है। इन प्रोग्रेस मतलब आपने अपने फोन को उठा के नंबर डायल करना स्टार्ट किया या नंबर डायल कर दिया और सर्चिंग टोन आई या कहीं कॉल जाने की कोशिश हो रही है, उसका भी हम प्रोटेक्शन देते हैं। अगर मेन फेल हो गया तो स्टैंड बाई के ऊपर चलता रहेगा, वो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि फेलियर हुआ है। सिर्फ जो सर्वर को मॉनिटरिंग टीम है या जो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर हैं, उनके पास अलर्ट जो जा रहे हैं उन्हीं को पता है, बाकी किसी को पता नहीं लगेगा। नहीं ठीक है, ये है तो अच्छा है।
सर कोशिश की है कि हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक डेवलप करके दें ताकि यूजर को यूज करते समय फेल्यूअर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली ये तो एसटीएम सब हट जाएगा, वो आईपी एमपीएलएस लगेगा, ये सब धीरे धीरे जी 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 आईपी जी बेस्ड हो जाएगा। तो जी ये जी। अगर ऐसा तो कोरल के मक्स अच्छा के है, अंदर मैं ऐसा देखा हूँ। हाँ, कोरल के मक्स में इन्वेस्टमेंट रेलवे का बेस्ड नहीं होगा, हम उसी को यूज कर लेंगे सिर्फ अपग्रेड करके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं इसमें तो आप बताइए। अच्छा, ये हाँ, if any- पर्टिकुलर एसएमएस कितने लोग के पास भेज सकते हैं? एक पर्टिकुलर जितने आप एसएमएस कितने आदमी को भेज सकते हैं? एक जितने पर्टिकुलर आप अलार्म। कितने भी आप अलार्म्स का कॉन्फ़िगरेशन जितने लोगों को कर सकते हैं, मेरा डेटाबेस में कोई लिमिटेशन नहीं है। से आपने एक लाइन के ऊपर मान लीजिए आपने बड़ौदा में या रतलाम में मक्स लगाया हुआ है, उसका एनएमएस लगा हुआ है और उसमें आपने डायरेक्टरी अपनी डिफाइन कर दी 1000 लोगों की। आप उस 1000 लोगों में से आपको सिलेक्ट करना है किस किस को कौन सा एनएमएस भेजना है, कौन सा अलर्ट भेजना है। आप 1000 को भेजना है, आप 1000 को भेजिए। मतलब एक ही एसएमएस पर्टिकुलर एक ग्रुप में भेज सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। ठीक है। आपको उसमें ये डिपेंड करता है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसा किया है, कितना कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, आपको कॉन्फ़िगर करना है उसमें। मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं क्या? एक सेकंड रुकिए, मैं अगर वो स्क्रीन की आपको मैं स्क्रीन आपको कोशिश करता हूँ, मैं इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन विंडो ही दिखा देता हूँ। हाँ, विंडोज को अगर आप देखेंगे ना, कॉन्टैक्ट मैपिंग आपने मक्स लिया, ये कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप चाहिए होना तो चाहिए। अभी भी नहीं दिख रहा सर? है अपडेट कॉन्टैक्ट्स किसी को करना है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स आप डाल सकते हैं सारे। फोन आ जाता है बीच में, क्या करना? सर दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। हाँ हाँ, हाँ, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एक पेज है, उसके अंदर से आप कॉन्टैक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं सारी।
कॉन्टेक्ट्स एंड डिवाइस मैपिंग एक विंडो है जिसके अंदर आप मक्स पर जाएंगे और उस मक्स में जो आपने कॉन्टेक्ट एंटर किए हैं उस मक्स के साथ में उन कॉन्टेक्ट को आप मैप कर सकते हैं जिससे भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपको लेवल बेस्ड फिल्टर होता है। लेवल बेस्ड फिल्टर में आपने जो कॉन्टेक्ट्स आपने डाले हैं उस कॉन्टेक्ट्स में किसी भी आपने लेवल जब डिफाइन किया था तो उसके साथ में आपको कौन सा अलर्ट भेजना है किसको, उस लेवल पे आपने अलर्ट को टिक कर देना है। मान लीजिए आपने किसी को कार्ड डिलीट का अलर्ट भेजना है तो कार्ड डिलीट पर टिक करके सेव कर दीजिए, तो सीनियर डीएसटी को कहीं उस मक्स में कोई भी कार्ड डिलीट करेगा सीनियर डीएसटी को मैसेज जाएगा। अगर आपने कार्ड ऐड का कर दिया तो उसको कार्ड ऐड जाएगा। आप सारे को कर दीजिए, सारे मैसेजेस उसको जाते रहेंगे। आप हर लेवल के ऊपर ये डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पर किस लेवल पे क्या मैसेज भेजना है। इसके बाद आपको कार्ड डिलीट वही मार्क्स का वही हाँ सेम हर मार्क्स का हर कार्ड डिलीट को मैं एसएससी एएसटी और डीएसटी तीनों नहीं आप नहीं देखिए, हाँ आपने जो है ना ये तो डिफाइन करना है आपको लेवल वाइज, लेवल कार्ड ये लेवल वाइज डिफाइन करना है आपको किस लेवल को आपको कौन सा मैसेज किस लेवल के आदमी को भेजना है। आपने सारे मैसेज जिस लेवल पे आपको सारे मैसेज भेजने हैं सारे मैसेज टिक कर दीजिए। किसी को मान लीजिए आपने डीआरएम को डिफाइन किया हुआ, डीआरएम को तो साहब मैं सिस्टम डाउन का मैसेज भेजूंगा अकेला, तो सिस्टम डाउन डिवाइस डाउन पे टिक करिए और उसको सेव कर दीजिए। डिवाइस डाउन का जब भी मैसेज होगा वो डीआरएम के पास भी जाएगा। वो सारे नेटवर्क में, ये सारे नेटवर्क के लिए हो रहा है। तो ये होता साइमल्टेनियसली सीनियर डीएसटी और डीआरएम दोनों को भी जा सकता है। हाँ आप जिसको डिवाइस डाउन आपने देखिए डिवाइस डाउन आपने डीआरएम को कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइस डाउन आप सीनियर डीएसटी को भी कर दीजिए, तो ये डिवाइस डाउन दोनों के पास जा रहा है। अभी डिवाइस डाउन दोनों के पास जा रहा है। ओके 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 ठीक है, और आप यहां से आपको उनको ये डिफाइन करना है कि किस मक्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने सारे लोग यहां पर कर दिए कि हर मक्स के लिए सारे लोग हैं, हमने डिसाइड करना है मैसेज टाइप से, हमें लोकेशन से डिफाइन नहीं करना, डिसाइड नहीं करना, हमें मैसेज टाइप से करना है। तो यहाँ पे सारों को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर मैसेज टाइप से डिसाइड कर लीजिए कि ये वाला मैसेज किस लेवल को जाना है। या आपने डिफाइन कर दिया जी कि ये मितेश पागी तो आनंद के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वेद प्रकाश जो है वो बड़ौदा के मक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आनंद के मक्स पर मितेश पागी को टिक करना है और बड़ौदा के मक्स पर वेद प्रकाश को टिक करना है। तो आप जैसा भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप सभी को सब कुछ भेजना चाहते हैं एक बार में टिक करके खत्म करिए, और आपको अदरवाइज जैसा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है वैसा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और उन सारे मैसेजेस की आपको रिपोर्ट्स जब भी निकालना चाहें आपको रिपोर्ट उसकी निकल जाएगी। आपको ऐसे रिपोर्ट्स आ जाएंगी और ये रिपोर्ट पीडीएफ में सेव कर लीजिए, तो पीडीएफ में रिपोर्ट आपके पास चली जाएगी। किस किस को कौन कौन से मैसेज भेजे थे वो रिपोर्ट्स आपको किस टाइम पर किस डेट पर क्या गया था वो रिपोर्ट आपको आ जाएगी। और इन रिपोर्ट्स को हम फर्दर ईमेल्स पर भी भेज सकते हैं, अलर्ट्स को ईमेल पर भेज सकते हैं, हम रिपोर्ट्स को ईमेल पर भेज सकते हैं अगर ईमेल्स को आप इसके साथ इंटरफेस कर देंगे आपकी। तो एनएमएस को हमने काफी लेवल तक हम इसको यूजर फ्रेंडली नहीं यूजेबल बना दिया है प्रोडक्ट को। कोशिश की है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों को। आपको एक लोकेशन पर जाके किसी को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। स्मार्टफोन आप यूज करते हैं, आपके फोन पर सब कुछ है। हम फ्यूचर में इसको आगे जाके एंड्रॉइड बेस्ड कुछ स्मॉल सिंपल क्लाइंट्स भी हम इसके लिए देने की तैयारी कर रहे हैं कि आपके मोबाइल के ऊपर क्लाइंट डला हुआ है, आप उसने सीधा अपने एनएमएस से इंटरफेस करके अपनी सारी चीजें देख पाएंगे। इस अंडर डेवलपमेंट, अभी हमने इसीलिए उसको अनाउंस नहीं किया है, इस अंडर डेवलपमेंट।
Okay. If anyone have any query, please ask. तो जब ENM कार्ड को 2 वायर सर्किट की तरह यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर एक इश्यूज हमने नोट किए। इसके अंदर गेन सेट करते हैं ना, वो गेन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, और ये सेम चीज हमने एक बार मितेश भाई से भी डिस्कस किया था। तो सर हाँ उसका सर वो एक बग था, वो हमने आइडेंटिफाई करके वो रिजॉल्व कर दिया है। अगर जहां पर भी हो रहा है वो मितेश या तो E&M कार्ड चेंज करा दीजिए या उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा दीजिए। तो आनंद गुजरा के बीच में सब सर जगह हो रहा है। सेम इशू एक हमने फेस किया है राजकोट डिवीजन में। जी तो वहाँ पर सर क्या जो भी हमने गेन चेंज किए, लेकिन गेन वापस एज इट इज जो है -8 और 0 पे जो है बाय डिफॉल्ट चला जाता है। हाँ, वो एक एक्चुअली इशू था कि एक बेसिकली जो हमारा प्रोसेसर जो है ना, उसके साथ में एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस की टॉलरेंस का एक मैटर था, उसकी वजह से वो थी। तो हमने उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया अकॉर्डिंगली। वो उसकी वजह से एक इशू था, वो आइडेंटिफाई हो गया था। वो हमने इशू को हम सर्च कर रहे थे कि वो इशू क्यों है, वो हमने आइडेंटिफाई करके उसको किल कर दिया है। उसके लिए ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं, या तो साइट पर जाके सॉफ्टवेयर उसका चेंज हो जाए तो क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज कार्ड को चेंज करा लीजिए। अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ में कार्ड हम रिप्लेस कर देंगे। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। अगर आपको चाहिए कि वहां पर हम एग्जिस्टिंग कार्ड्स हम आपके पास भेज दें तो आप उसको चेंज आप हमारे पास भेज दें तो हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके दे देंगे, या आप भेजें भी ना, आपका कार्ड अगर ठीक है, कहीं फॉल्ट्स नहीं है उसमें, पुराना है और हाँ, फॉल्ट नहीं है, हाँ। आप हमको बोलिए, हम दूसरा कार्ड आपको दे देंगे, आप हमें वो दे दीजिए। ओके, यार क्योंकि ओपन मेरे सर, पास उसमें क्या भी जितने ऐसे ही। सर्किट्स हैं वो सारे वर्किंग में है, मेरे पास कोई स्पेयर सर्किट नहीं है, तो हाँ उसको ठीक एक्चुअली है, ऑन साइट ही रिप्लेस करना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हम दूसरा हार्डवेयर आप बता दीजिएगा कि क्या क्या है, या उसका सीरियल नंबर आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको दूसरा हार्डवेयर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वी डोंट हैव एनी और प्रॉब्लम। एक चीज कार्ड राइट, चेंज एक करके देंगे, सर वो आपने फ्री एक ऑफ जो कॉस्ट करेंगे लूप कि थोड़ा इंटरफेस पैसा की लेंगे हमसे? हाँ सर, कार्ड जो कह रहे हैं ना कि कार्ड चेंज करके दे देंगे। सर जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का इशू है उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। अगर आपके कार्ड में, किसी कार्ड में पोर्ट फॉल्टी है या कुछ फॉल्टी है और पुराना है, तो वी विल चार्ज फॉर दैट। अच्छा अच्छा। ठीक है, वैसे पोर्ट फॉल्टी मेरे में होते नहीं है, वैसे पोर्ट फॉल्टी मेरे में होते नहीं है, लेकिन वही तो कोरल मक्स की वही तो एक खासियत है, मतलब कि मैंने आज तक कभी किसी कार्ड का पोर्ट फॉल्टी हुआ है ऐसा सुना ही नहीं है। हाँ सर, लेकिन पोर्ट का तो सर इसमें बिल्कुल इशू नहीं हुआ है, लेकिन सभी मेरे यहाँ क्या ब्रांच लाइन में जैसे 7-8 मक्स लगे हुए हैं सीरीज में, सभी मक्स में सेम इशू आया है। हाँ आप बता दीजिए, एक साथ जो है सबका गेन हम रिप्लेस करा देंगे, हम रिप्लेस करा देंगे, डोंट वरी, हम रिप्लेस करा देंगे। ओके। और दूसरा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि इसका लूप जो है 3300 ओम्स तक वर्क करेगा ये ऑटो के लिए। जी, लेकिन एक मेरे यहाँ हम लोग क्या एक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्टेशन पे एक चला रहे हैं, वो भी क्वाड केबल पर। क्वाड केबल के केस में अगर आप उसका लूप मेजर करके देखेंगे कितना आ रहा है लूप रेजिस्टेंस सर, 550 ओम्स ओनली। बिल्कुल चलेगा, कोई फेल्योर नहीं आएगा तो सर। उसमें चल रहा है, लेकिन क्या है जो ऑडियो है, मतलब जो मैं हाँ, बोल रहा हूँ आपको, लेवल है वो काफी डाउन हो जाता है, मतलब काफी जो है आवाज जो है काफी बैठ जाती है। तो हम लोगों ने उसका गेन भी बढ़ाकर देखा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक बार आप किसी को मुझे दिखा दीजिएगा, उसका हो सकता है उसका करंट लो किया हुआ हो, लो लूप हाँ के हाँ, हिसाब से करंट लो किया हो, तो उसका कोई कमांड दे देंगे, लो लूप से हाई लूप पे चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा काम। वो ओके। तो उसके लिए बकायदा आपको चलता है। रिमोट हेलो देना पड़ेगा। हेलो हाँ, रिमोट एक बार हेलो। दिखा दीजिए, रिमोट दिखा दीजिए, या फिर मेरा कोई इंजीनियर उस तरफ आता है तो उसको दिखा दीजिएगा, देख लेगा वो। हाँ हेलो जी सर, सर। हाँ जी सर, बताइए। डिटेल्स शेयर कीजिएगा। अच्छा अच्छा, अगर कहीं स्टेशन पे अगर हम किसी कंट्रोल सर्किट पे अगर वॉइस कटती है तो क्या करना चाहिए उस समय? वॉइस जैसे कट कुछ स्टेशन पे प्रॉब्लम आते, हाँ वॉइस कट कट के आती है जैसे। वॉइस कट कट के आने के काफी सारे मैटर्स हो सकते हैं, या तो कहीं कुछ लूप हो रहा है किसी वजह से, या गेन कुछ ऊपर नीचे है काफी हद तक, या इवन आपका प्रॉब्लम मीडिया आपका प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, लेकिन सभी कंट्रोल पे नहीं, केवल जैसे कि पर्टिकुलर केवल कंट्रोल पे आ रही है, टीपीसी सर्किट पे आ रही है, तो उस केस में क्या मतलब केवल वो पोर्ट गया है क्या उसका?
क्या करना चाहिए हमें? देखिए पोर्ट की संभावना कम होती है, हो भी सकता, पोर्ट की संभावना बहुत कम होती है। कट कट के ऑलवेज आती है क्या? अगर ऑलवेज आती है तो हार्डवेयर का इशू हो सकता है। अच्छा, रवि सर अगर मेरी ये बात सुन रहे हो तो सर वो उस समय सर आई थी ना सर रतलाम चित्तौड़ सेक्शन में। रतलाम चित्तौड़ सेक्शन में तो अभी कुछ समय पहले ही लगाए थे, तो यहाँ का इंजीनियर है महेंद्र, वो उसको देख रहा है, तो देख के वो आइडेंटिफाई करके बता ही देगा आपको। रतलाम चित्तौड़ सेक्शन को तो वो महेंद्र ही इंटरेक्ट करता रहता है ना इंदौर से। हाँ, लेकिन अभी जब मैं था वहाँ पे रतलाम डिवीजन में, तब मेरे समय में आई थी, तो उस समय जो है हमने बुलाया था, लेकिन शायद अब मेरे पास अपडेटेड नहीं है, अगर होता तो महेंद्र मुझे बता ही देता कि ऐसा इशू आ रहा है इस साइट पर। वो तो इनफैक्ट एक बार गया भी था, और अगर कहीं इशू है तो आप बताइए, वो इंजीनियर आके चेक करवा देगा, आपको बता देगा। क्योंकि रतलाम चित्तौड़ सेक्शन में तो अभी लेटेस्ट या भी कुछ समय पहले ही लगा है, और हो सकता है कहीं पे कुछ लगाने में या कनेक्टिविटी में किसी चीज में कुछ इशू हो। ये फेल्यूर नहीं है रतलाम चित्तौड़ सेक्शन में, अभी अभी लगे हैं ना यहाँ तो। हाँ, अभी तो खैर पूरे सर्किट भी उस पर डाइवर्ट नहीं हुआ, कोई टीपीसी हाँ सर्किट भी चल रहे हैं हाँ उस पे। हाँ, तो वो इंस्टॉलेशन या उस चीज का कुछ एरर हो सकता है, तो वो दे विल आइडेंटिफाई एंड करेक्ट दैट। चलिए ठीक है, मैं बोल दूंगा ये उनको, जो वो एक बार जो है और उनसे बात करके। जी सर ये 4 वायर और 2 वायर का जो रहता है, अगर 4 वायर से 2 वायर में चेंज करना हो तो जंपर से चेंज करते हैं, फिर कमांड लाइन से भी चेंज करना पड़ता है उसको। कमांड लाइन से, देखिए बेसिकली होता तो कमांड लाइन से ही चेंज है, लेकिन जंपर हमें सिर्फ इसलिए चेंज करना होता है कि 4 वायर के केस में गेन को काफी बढ़ा के रखा जाता है, ठीक है। और 2 वायर के केस में गेन को बहुत कम करना होता है, 50% होती है 2 वायर के केस में गेन। तो हार्डवेयर गेन, मैं हार्डवेयर गेन की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट सॉफ्टवेयर गेन, हार्डवेयर गेन। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो एक जंपर से एक गेन के हार्डवेयर को बाईपास करते हैं सिर्फ। आप 2 वायर 4 वायर कमांड से कर सकते हैं, आप कमांड से करते हैं, चलता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आवाज आती है। अगर उसको 2 वायर बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा विस्लिंग आती है एक्चुअली। हाँ, तो वो जंपर को आप चेंज कर देंगे तो बिजलिंग खत्म हो जाती है। उस जंपर को 4 वायर की कंडीशन जैसी रख दें क्या? उस 2 वायर की कंडीशन पे करिए जंपर को, 2 वायर की कंडीशन पे रखें तो उसमें जंपर फिर को। ज्यादा गेन एडजस्टमेंट ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। हाँ, वो नॉर्मल गेन एडजस्टमेंट, हार्डवेयर गेन क्या होता है, हार्डवेयर गेन जो है 4 वायर के लिए डिफॉल्ट हार्डवेयर गेन डबल चाहिए होती है, क्योंकि टीएक्स और आरएक्स को बाइफरकेट करके रखा होता है, दोनों चीजों का अलग अलग प्रायोरिटी होती है, तो इसलिए एक जंपर उसमें दिया हुआ है। और वो जंपर जो है एक्चुअली हम उसको एच पर स्पेसिफिकेशन मैनुअल हम उसको ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते थे, इसलिए वो जंपर रखे हुए हैं हमने उसके अंदर। और अभी उस कार्ड के अंदर मल्टीपल जो जंपर्स थे पहले के पुराने कार्ड्स के अंदर, हमने नए में रिक्वेस्ट करके हमने सारे जंपर्स रिमूव करके सिर्फ एक ही जंपर रखा है हर पोर्ट के ऊपर। अब जो नया जो भी कार्ड आएगा ना, उसमें सिर्फ एक ही जंपर दिखेगा, उसी जंपर को आपको चेंज करना, कंफ्यूजन का चक्कर ही नहीं रहेगा। पहले हमने मल्टीपल जंपर्स लगाए हुए थे, हमने जंपर हटा के एक जंपर कर दिया कार्ड के अंदर। तो उस केस में जैसे 4 वायर जैसा जंपर रखते हैं तो उसमें भी रिसीव वाले पेयर पे ही चलेगा 2 वायर या फिर ट्रांस वाले पेयर पे चल रहा है? चलेगा रिसीव वाले पेयर पे ही सर। रिसीव पे ही चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक। गेन बहुत ज्यादा हो जाएगी और बिजलिंग आती है उसमें, बहुत ज्यादा गेन हो जाती है। हाँ हाँ। तो वो यानी कि ऑडियो बहुत ज्यादा होती है, तो वो सजेस्टेबल नहीं होता कोई जंपर उधर रहे, इसलिए सबसे पहले, इसीलिए मैनुअल में लिखा होता है, इसमें भी पीपीटी में मेरे में लिखा कि सबसे पहले उस जंपर को चेंज करिए फिर कमांड दीजिए। ओके ओके हाँ, ठीक है। किसी और को भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। सर एक बार इसके सर इवन कार्ड्स के अलार्म्स के बारे में बताएंगे? इवन कार्ड के अलार्म्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं, बताइए ना। इवन कार्ड में उसमें कुछ 5-6 अलार्म्स हैं, एक आरए है, एलईडी है, एलओएस है, और देखिए कार्ड के ऊपर जो फिजिकल आपको दिखता है उसमें आरईडी दिखता है। आरईडी अलार्म जो होता है वो इवन का फिजिकल फेल्यूर नहीं होता, इवन का सॉफ्टवेयर फेल्यूर होता है। एक होता है एलओएस, देखिए हम शुरू से चलते हैं। एलओएस होता है लॉस ऑफ मीडिया, लॉस ऑफ सिग्नल, वो फिजिकल फेल्यूर हो गया। हाँ, और इसके बाद सेकंड होता है आरईडी। आरईडी के केस में आपको 2 MB नहीं मिल रहा पूरा सिग्नल उसको,
इसलिए RET अलार्म आता है। इसके बाद तीसरा होता है RAI रिमोट अलार्म इंडिकेशन होता है। यस, ठीक है, एक के बाद अलर्ट टू आ रही है। हाँ, इसके बाद AIS होता है, अलार्म इंडिकेशन सिग्नल। इसके बाद एक अलार्म होता है स्लिप में क्लॉक मिसमैच होती है तो स्लिप आता है। कार्ड के ऊपर फिजिकल हम इतने ही दिखाते हैं। तो स्लिप अलार्म जो है वो कंटिन्यूअस रहना रहेगा या फिर ब्लिंकिंग करेगा? स्लिप रहना ही नहीं चाहिए। स्लिप रहेगा तो डिस्टरबेंस आएगा। यस, नहीं कई जगह पे क्या है सर, जैसे नॉर्मल फंक्शन कर रहा है बक्स, लेकिन तो फिर भी स्लिप अलार्म जो है बीच बीच में आता है फिर जाता है। क्लॉक मिसमैच हो रही है वो। हाँ, वो क्लॉक Clock मिसमैच हो mismatch रही है। हाँ, क्लॉक मिसमैच है, इसकी वजह से आ रहा है। आपको क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा मक्स की। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हम लोगों ने कोरल मक्स और बेफिल मक्स दोनों को आपस में सिंक किया हुआ है। हाँ, वो क्लॉक मिसमैच है, इसकी वजह से वो स्लिप आ रहा है। और क्लॉक मिसमैच जब होती है ना, तो जिस मूवमेंट पे क्लॉक में चेंज आ रहा होता है उस मूवमेंट पे खशी करके डिस्टरबेंस आता है काफी कुछ। यस, अभी कंट्रोल सर्किट्स में डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन मुझे अलार्म में जो है स्लिप अलार्म कई बार आता है। नहीं, जिस मूवमेंट पे आपका वो अलार्म का स्लिप Okay. का LED फ्लिकर करेगा ना, उस करके डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा। क्लॉक का डिस्टरबेंस आता ही आता है, ऑलवेज वॉइस पे आता है। ओके। हाँ जी। और एक और इशू जो हम लोग फेस कर रहे हैं, एक स्टेशन है मेरा, वहाँ पे होता क्या है, रेगुलरली जो है माइनर अलार्म जनरेट करता है मक्स। माइनर अलार्म जनरेट करने का, माइनर अलार्म काफी सारी चीजों का हो सकता है। और जैसे आप काफी उसको MIC कार्ड से रीसेट कर देते हैं, वो तो normal रीसेट कर दिया तो अलार्म बंद हो गया। रीसेट कर Yes. दिया तो अलार्म बंद हो गया। वो Yes, तो एक कोई बिल्कुल। मतलब माइनर अलार्म किस चीज का आ रहा है। माइनर अलार्म काफी सारी चीजों के डिफाइन हो सकते हैं। आपका कहीं E1 की केबल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कहीं पावर सप्लाई का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कहीं कोई कार्ड के पोर्ट शॉर्ट हो रहे हैं। माइनर अलार्म डिफाइन किए हुए हैं ना, अलार्म्स काफी सारे डिफाइन किए हुए हैं मक्स में। मैं आपको बाय डिफॉल्ट जो अलार्म डिफाइन होता है ना, माइनर मेजर और वो चाहे तो मैं आपको, आप अपना नंबर जो है मुझे मितेश को शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कौन कौन से अलार्म माइनर में डिफाइन होते हैं और कौन कौन से मेजर में डिफाइन किए हुए होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आपको ये पता लगेगा कि माइनर अलार्म आ रहा है तो पॉसिबली फेलियर किस किस चीज में हो सकता है। ओके, राइट। और अगर आपके मुझे पास कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे। हाँ, कौन मितेश टेक्स्ट लिख दोगे आप? या मैसेज में डाल दीजिए, सभी लोगों को मिल जाएगा। हाँ, Okay, मैसेज में डाल देता हूँ। राइट। कोई और भी अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करेंगे। और एक सर CPU कार्ड जो है, जैसे फिजिकली डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन सर उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिडीम कर सकते हैं? आपको सीरियल पोर्ट है उसके ऊपर, सीरियल पोर्ट आप कनेक्ट करिए 19200 बॉर्डर रेट पर कनेक्ट करिए सीरियल पोर्ट पर, और उसमें सीमक शो नोड करिए, उसमें उसकी IP मिल जाएगी आपको। ओके, ये किसी भी उससे कर सकते हैं ना, हाइपरटेक्स्ट टर्मिनल से या फिर कुछ भी? हाँ, सीरियल पोर्ट पे आप कनेक्ट करिए बॉर्डर रेट 19200 रख के, और पासवर्ड दीजिए, वहां पर देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। क्योंकि उस सिचुएशन में हमने ईथरनेट से ट्राई किया उसको। ईथरनेट पे आपको IP नहीं पता होगा ना उसका, इसलिए एंट्री नहीं हो पा रहा है उसके नहीं, अंदर। IP मुझे पता है उसका। IP पता है तो IP खुल से जाएगा ना। हाँ, उस IP से मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक जो है ना, एक जो है 0.253 एक IP होती है उसके अंदर, बाय डिफॉल्ट 192.168.0.253 पे। 0.253। हाँ, इससे आप एंटर करिए, आप एंटर हो जाएंगे। हो सकता है मक्स की IP चेंज की हुई हो। 0.253 जो है उसकी हम एक LCT IP उसमें बना के रखते हैं, तो LCT की IP से आप एंटर कर लीजिए। अगर आप सीरियल पोर्ट नहीं चला पा रहे हैं तो उससे भी आप एंटर हो पाएंगे। एक्चुअली हमने ये बाय डिफॉल्ट से भी ट्राई किया था, उसमें हुआ क्या है, वर्किंग मक्स था हमारा, मतलब हाँ, तो वो डिफॉल्ट सर, वो डिफॉल्ट नहीं हुआ। वो जो IP होगी उसमें वो IP ही चल रही होगी, इसलिए आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं उसको। मैं दोनों से हमने ट्राई किया था एक्सेस करने के लिए, लोकली लैपटॉप लगा के, लेकिन दोनों सिचुएशन में हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए। आपको एक्सेस करने के दो तरीके हैं, आप सीरियल पोर्ट से कर लीजिए या 0.253 जो है उसमें LCT IP होता है, उससे आप कर लीजिए। ओके, और उन दोनों सिचुएशन में भी वो नहीं करने देता है तब?
दोनों सिचुएशन में ऐसा होगा नहीं, हाँ, पॉसिबल क्योंकि नहीं मुझे होगा। सीपीयू कार्ड वहाँ पे चेंज करना पड़ा है, हमने दूसरा सीपीयू कार्ड को डीकॉन्फ़िगर सीपीयू करके कार्ड रन कर रहा है ना, वो रन कर रहा है ना, रन भी नहीं कर रहा, रन भी नहीं कर रहा है वो, ओनली एलईडी इंडिकेशंस आते हैं बस उसमें, बाकी जो है वो नहीं कोई नहीं, एलईडी इंडिकेशन अच्छा कौन नहीं सा होता। ऊपर जो रन का लाइट है वो रेड चल रहा है या ग्रीन फ्लिकर कर रहा है? वो तो ग्रीन रहता है। ग्रीन फ्लिकर कर रहा है ना। हाँ, ग्रीन फ्लिकर कर रहा है, हाँ तो सारे मतलब सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन सीपीयू कार्ड रन, हाँ सीपीयू कार्ड रन कर रहा है, ग्रीन फ्लिकर कर रहा है, मतलब सीपीयू कार्ड एक्टिव है आपका। ओके आपका किसी ना किसी मोड में खुल ही जाएगा वो। ओके राइट, मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। हाँ हाँ, एनी टाइम सर एनी टाइम। और वो ओके, थैंक सीरियल यू। पोर्ट से खोलने के लिए मैंने कई बार देखा है कि वो जो हमारे पास जो दूसरे कंसोल केबल होते हैं उससे खुलता नहीं है, उससे तो नहीं आप खुलेगा, उससे उससे नहीं खुलेगा। 235 कनेक्टिविटी होती है मेरी, 2 और 3 क्रॉस होते हैं, 2TX 3RX। हाँ, तो जो आपने सप्लाई किया वो शायद उससे ही खुलेगा ना। उससे ही खुलेगा क्योंकि कंसोल केबल स्टेट होते हैं, वो TX टू TX उनमें कंसोल केबल इसलिए वो वैसे होते हैं कि हम रिवर्स कनेक्टिविटी चलाना पड़ता है ना पीसी के अंदर, वो कंसोल केबल जो है ना वो बाय डिफॉल्ट रिवर्स बने होते हैं, तो इसलिए उल्टा चल जाता है, वो नहीं चलता उससे। ओके वो अपने वो प्रोप्राइटरी डिवाइस के ये कनेक्टिविटी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। जनरली कंसोल केबल मेरे हर मक्स के साथ में कंसोल केबल मिल ही जाती है। हाँ ये तो है सर। जी, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। Any other query? Otherwise